Praise the Lord. जय मसीह की. Praise the Lord. Praise the Lord. You know what I love about this hall? There's this echo which makes us feel very like we're a very good singing church. और यहाँ पे एको होता है तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि इस बहुत अच्छा गीत चल रहा है. Just wanna say one thing before I move forward. कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ. We've in our staff meeting we've been having a lot of extensive talks and discussions about what is the vision of our church. हमारे स्टाफ मीटिंग्स में जब हम मिलते हैं हम बात करते हैं कि हमारे कलीसिया के प्रति दर्शन क्या है, हम क्या करने वाले हैं. It is our desire and our whole team's desire that we should fill this hall and reach 500 people by the end of 2023. और ये हमारी इच्छा है कि इस 2023 के अंत तक ये कलीसिया पीछे तक भर जाए. Amen. आमीन. So we have divided the church into various groups for us to call, to be accountable, to take attendance whether you've come to church, and we've divided the whole church into 5 to 6 groups. हमने पूरे कलीसिया को 5-6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. लोगों के बीच में, इवेंजलिस्ट के बीच में हमने डिवाइड कर दिया ताकि वो लोग आपसे मिले, आपके साथ समय बिताएं. Because one person I can't call 350 people all at once. एक व्यक्ति मैं अकेला ही 350 लोगों से मिल नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता. So I just wanted to introduce to you Johnny and Parvesh, because what happens is I want to introduce them to you because if they call you, I don't want you to ask them आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं. मैं चाहता हूं कि अभी आपके सामने मैं दो लोगों को प्रस्तुत करूं जिनका नाम जॉनी और प्रवेश है. पहले भी मैंने आपके सामने रखा है. जब फोन करते तो कृपया मत पूछिए कि आप कहां से हैं, क्यों फोन कर रहे हैं. So I just want to let you know कि हमने बोला है आपसे फोन करने के लिए, संपर्क में रहने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, कोई भी जरूरत है आपको करने के लिए. So everybody knows Pravesh. Can you lift up just wave your hands? Wave your hands. There he is. And there's Johnny in the back. और जॉनी भाई जो वहाँ पे कैमरा के पास में पीछे है, वो भाई जॉनी है. And so if they call you and they say I'm Johnny, please don't say I don't know who you are. Please stop calling me and stop stalking me and all of those things. We have designated them to call people in our church. यदि आपके पास कॉल आता है, घंटी बजती है, बोलते हैं कि मैं जॉनी हूँ या प्रवेश हूँ, आप ऐसे मत बोले कि मैं जानता नहीं, ओके गुड बाय बोल के रख मत दीजिए. वो हमने ही बोला है उन्हें कि आपको कॉल करें. Also I want to acknowledge, I think not Pastor Kandaswamy uncles and Esther auntie's son and daughter-in-law are here. Can you just stand up real quick? That's them. I know many of you are clapping and you don't know why you're clapping, but you can still clap. Tali bajaiye, then I'll tell you why you're clapping. Please be seated. Actually, Kandaswamy uncle and his dear wife Esther have been part of our church for over maybe close to 35 years, and they both went to be with the Lord, and they're a very, very old family, and they reconnected with Vijay Bhaiya, and they have promised us that they will come back to church, and we're happy that you're here. Welcome. And I think the last time I met him, it was 20 years ago, but it's good to reintroduce ourselves to him, because even though times have changed, our heart has not changed. आज से 20 साल पहले लगभग मैं आपसे मिला था, पर आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई. तंगस्वामी अंकल उनके और उनकी पत्नी जो उनके माता पिता है, वो हमारी कलीसिया के साथ पिछले 30-35 वर्ष से जुड़े थे, परंतु वो दोनों प्रभु में सो गए हैं. पर अब वापस आपको कलीसिया में पाकर बड़ी आनंद. Like what mom said, we continue to worship the Lord from generation to generation. Amen. जैसे हमारी जॉयस आंटी कहती है कि हम पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं. Amen. Hallelujah. I was just I see people like Manish, and when their 2 children grow up, they would know nothing except Jesus Christ because their parents are also Christian. मैं भाई मनीष को जब मैं देखता हूँ, उनके 2 बच्चे अभी उनके पास है, जब उनके बच्चे बड़े होंगे वो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कुछ और चीज को जानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इसी कलीसिया में की. When you think about Navneet and Esther, the name goes on because the next generation will not know anything except Jesus Christ. अगली पीढ़ी की सूची यूं ही लंबी पड़ी है क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह के अलावा पहचानने के लिए कोई और नहीं है. Amen. आमीन. What a privilege to know this Jesus Christ. इस प्रभु यीशु मसीह को पहचानना क्या ही मनोहर बात है. The title to my message, और आज जो मेरा संदेश का शीर्षक है, Who do we say we are? हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम हैं. Amen. Who do we say we are? हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम हैं.
You know, when I was preparing today's sermon, I was wanting to ask myself, what should I talk about? और जब मैं आज तैयार कर रहा था कि मैं किस चीज के विषय में आपके बीच में बात करूं, You know, because God has given us everything and more. और परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है और उससे बढ़कर दिया है। Amen. God has given us a wonderful place of worship. परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए अच्छी जगह दी है। God has given us wonderful things that we can call our church home. और परमेश्वर ने एक अच्छा जगह दिया है ताकि अब उसे अपना घर बुला सके। You know, like mom said, even I still cannot believe when we walk into this entry, it almost feels like we are walking into a 5-star hotel. जब हमें जैसे आंटी ने कहा कि जब हम इस रास्ते से आते हैं, जब यहाँ पे अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है 5-स्टार होटल में हम आए हैं, ये हमारा है करके यकीन But नहीं this is होता। our church, amen. पर ये हमारी कलीसिया है, This is our home, ये हमारा amen. भवन है, हमारा घर But है। today I want to ask you is, who do we say we are? पर आज मेरा सवाल ये है कि हम अपने आप को क्या बुलाते हैं? You know, many times now it's not like before. पहले से जैसे नहीं। Now, church back in the day, if you take 20, 30, 40 years, it doesn't matter how old you are, it doesn't matter what job you do. If it's Sunday, you are going to be in church. यदि आप मसीह हैं, आज से 30-40 साल पहले आप कोई भी नौकरी क्यों ना करते हो, आपकी उम्र क्या क्यों ना हो, आपको कुछ भी क्यों हो ना रहा हो, पर यदि संडे है तो आपको भवन में आना है। It did not matter whether you had money or you did not have money. आपके पास धन हो या ना हो, It did not matter whether you had education or did not have education. आपके पास पढ़ाई हो या ना हो, It did not matter who you are. ये मायने नहीं रखती कि आप कौन हैं। If you were a Christian, यदि आप एक मसीही हैं, you would be up by 6 o'clock on Sunday morning, headed to the house of God. सुबह 6 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होकर आप परमेश्वर के भवन के लिए अग्रसर होते हैं। That time there was no issue. अरे यार, दो बस बदल के जाना पड़ेगा। उस समय पर कोई समस्या नहीं होती, अरे यार I have to change 2 buses, अरे the church is so far. अरे कलीसिया तो बहुत दूर है, It's too hot. अरे बहुत गर्मी है It's यार, too cold. अरे बहुत ठंडी है, It's raining too much. बारिश हो रही है, डूब जाएंगे, It's too dry. The air is too polluted. अरे बहुत सूखा पड़ रहा है, हम बहुत सूख जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। People used to walk 10, 15, 20 kilometers just to go to church. पर लोग 20-30 किलोमीटरों पैदल चलकर, मीलों पैदल चलकर भवन में आराधना के लिए एकजुट होते थे। But now where are we standing? पर आज हम जहां हैं, People roaming around in their pajamas, लोग अपने पजामा में आ जाते हैं, in their house, उनके घर में चौकड़ी मार के, sitting and saying that, भैया, I'm coming, I'll come to online church. मैं ऑनलाइन YouTube देख लूंगा भैया, लाइव स्ट्रीम देख लूंगा। Let me tell you something, there's no online church in the Bible. मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बाइबल में कहीं भी ऑनलाइन चर्च नहीं है। There is only one church, is where 2 or more gather together in His name and we lift up the name of Jesus. That's where Jesus Christ is going to come in. बाइबल में सिर्फ Amen. एक ही कलीसिया है जहां 2 या 2 से अधिक एक मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति I है। don't care if you're 85 years old or 5 years old. चाहे वो 85 साल का क्यों ना हो या 5 साल का क्यों ना हो, You better pick up your body and you better tell your mind, body and spirit that I am going to worship the King of Kings and the Lord of Lords in the house of God. अपना बाइबल उठाओ, अपने आत्मा मन प्राण को तैयार करके अपने आप से कहो कि मैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आराधना करने में उस भवन में जा Hallelujah. I रहा want to हूं। tell you, you're not the only one who has a job till now. यदि आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही के पास नौकरी You're थी not अभी the तक? only one who has had children in your life. सिर्फ आप ही के पास बीवी बच्चे हैं क्या? It's not only you who have a headache, who goes through trials and tribulations in your life. अरे सिर्फ आप ही हैं क्या जिनके पास जिंदगी में समस्या है? I want you to know a church is a place where we are meant to come together whether you like it or not. परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया ये भवन ऐसा स्थान है जहां पर आपको अपने परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित होना है। A good doctor will keep you away from diseases. एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वैद्य आपको बीमारी से दूर रखेगा। A good church will keep you out of hell.
और एक अच्छी कलीसिया आपको नरक से दूर रखेगा। Hallelujah. आमीन। Stop just going to the best doctor in the world. सिर्फ अच्छे डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दीजिए। Stop just going to the best fitness center in the world. आप सबसे अच्छे जिम में जाना बंद कर दीजिए। Stop going to another place just to get the best job to make some money in the world. सबसे उत्तम नौकरी के स्थानों में जो संसार के कुछ चंद पैसे कमाने के लिए आप जाते हैं, But जाना if बंद you कर want to दीजिए। save your soul and the soul of your family, you better come to church. पर यदि अपनी आत्मा को, अपने परिवार की आत्मा को बचाना है तो आपको यहाँ कलीसिया में आना होगा। I want to tell you that I enjoy the fact that we have technology and so forth and so many things, and we clap. Oh wow, you came from Gurgaon, you came from East Delhi, West Delhi. But I want to tell you right now, God is not impressed just because you came to church. और इसीलिए कि ताली बजा के आराधना करते, गीत गा रहे, थोड़ी दूर से आ रहे, आप वहां से आए, गुड़गांव से आए, वो बहुत दूर से आ गए, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। But I want to let you know, coming to church is only pass marks. मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया में आना सिर्फ पास मार्क्स है। It's the least a believer can do. एक विश्वासी जो न्यूनतम कर सकता है वो यही है। Many people come to church for various reasons. बहुत सारे लोग कलीसिया में बहुत से कारणों से आते हैं, And this is happening now. और अभी आजकल होता भी है। It's a social club. ये एक सोशल क्लब है जहाँ पे लोग मिलते जुलते हैं। Everybody likes to hang out. सबको आके मिलना पसंद है। Everybody likes to mingle and chatter with one another. एक दूसरे मिल के थोड़ा मटर गश्ती करना सबको पसंद है। Hey, we need to go to a church, bro. कलीसिया में क्यों जाना है? Because we need a form to give it in admission, because the best schools are Christian schools. अरे पास्टर से रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ेगा फॉर्म में देने के लिए, तो इसीलिए चलते हैं। Better go to church. हम कलीसिया में क्यों जा रहे हैं? Better get membership in a church. कलीसिया में जाके मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले लेते हैं। Because if you want to go to St. Stephen's or Frank Anthony or Bethesda Christian Academy, you need to show your membership. हाँ, यदि सेंट स्टीफन, सेंट जेवियर्स में जाना है तो मेंबरशिप दिखाना पड़ेगा गुरु। Oh, so better go to church. तो चलो चर्च में चलते हैं। Then the next question. फिर अगला सवाल, अरे मेरे बेटी की उम्र हो रही है, हाँ मेरे बेटे की उम्र हो रही है, शादी कराना है, शादी कहाँ कराएंगे हम? Where will we get them married? शादी कहाँ होगी? चर्च में मेंबरशिप है तो शादी कौन कराएगा हमारी? चर्च में मेंबरशिप है तो कैसा होगा गुरु? चलो मिले, चर्च चले. Then there are men and women. फिर दूसरे स्त्री पुरुष होते हैं। अरे हमारी शादी नहीं हो रही, चर्च में ढूंढते हैं. Let's go and find it in the church. Let's go to church to find our soulmate. हम कलीसिया में जाके परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम व्यक्ति को ढूंढेंगे। मम्मी बोलो ना भैया को कोई ढूंढे मेरे लिए. पापा बोलो ना कोई ढूंढे, अच्छा सा लड़का मिलना चाहिए हमारी बेटी के लिए. बेटी कुछ भी करे, बेटा कुछ भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर शादी के टाइम में देखो कितना अच्छा मेरा बेटा है. पास्टर जी आप आंख बंद के शादी करा दो. मैं बोलता हूं मैं अब फंसता ही नहीं हूं इस मामले में. Is this the reason why we're coming to church? क्या इसीलिए ही हम कलीसिया में आते हैं? Is this why we're part of a church? क्या इसीलिए हम कलीसिया के भाग हैं? Today I want to tell you, and I want to explain to us, and I want to ask the question, who do we say we are? और मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप अपने आप को, हम अपने आप को किस नाम से पुकारते हैं? अपने हमारा व्यक्तित्व क्या है? The word church comes from this Greek word called ecclesia. कलीसिया जो शब्द है वो यूनानी शब्द इक्लीसिया में से आती है। It is a group of people that are called out specifically. इक्लीसिया कौन है? ये वो लोग हैं जो चंद चुने हुए लोग हैं जो एक उद्देश्य के लिए बुलाकर इकट्ठे किए गए हैं। The church does not matter what caste you belong to, it doesn't matter what social status you have, it does not matter what background you have, but you are the called out ones the day you said, Jesus, come into my life. आप कौन हैं? आपका पाश्चात्य क्या है? आप कहां से आते हैं? आप कितने धनी हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? पर ये यहां पर मायने नहीं रखती, बस एक चीज मायने रखती है कि प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धारक है। And I want to let you know that church is a place of fellowship, and I don't care who you are, I don't care what amount of salary you have or don't have, what is your education, but I want you to know that if
You are part of this church. You are called out for God's work, and you have to be involved 150% in your mind, body and spirit for the expansion of the kingdom of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया एक स्थान है जहां पर आप संगति करते हैं। मुझे मायने नहीं रखती कि आप कहां से आते हैं, कैसे व्यक्ति, आपका भूमिका क्या है, परंतु यदि आप इस कलीसिया के भाग है तो आपको 150% इस कलीसिया के साथ शरीर, तन, धन और आत्मा के साथ और प्राण के साथ यहाँ पर आपको सम्मिलित रहना आवश्यक Hallelujah. है। Otherwise, if you are not coming with that mentality, I want to tell you right now that you are probably coming to the church for X reason, but God will never ever fulfill what you want to achieve in your life because you did not understand the purpose of why church was instituted. और यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इस मनसा के साथ यदि कलीसिया में नहीं आते हैं तो आप फिर किसी और अमुक कारणों की वजह से यहाँ आ रहे हैं और प्रभु परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है, वो कलीसिया का उद्देश्य नहीं है। I want to tell you a few things that should happen when somebody comes to church. मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। जब कोई कलीसिया के अंदर प्रवेश करता है, कि भीतर प्रवेश करता है, तो क्या होना चाहिए? And that is what I want to glean your attention towards, and I want to let you go. और मैं आपका ध्यान उसकी ओर लेकर आना चाहता हूँ। Matthew chapter 16 verse 14 onwards. मत्ती 16वां अध्याय उसकी 14वीं आयत से लेकर आगे Jesus is asking his own disciples that who do you say I am? और वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Many people say, it says in verse 14. कुछ लोग कहते हैं कि तुम एलिया हो, Some say you're John the Baptist. कुछ कहते हैं कि तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने Some वाले say हो, that you're Elijah. कुछ कहते हैं कि तुम भविष्यवक्ता हो, Others say you are one of the prophets. और कुछ लोग कहते हैं कि तुम दूसरे भविष्यवक्ताओं में से एक हो। But Jesus says, I don't care what people say about me. You tell me, who am I? और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? And Simon gets up and says, you are Christ, the Son of God. और वहां पे शिमोन पतरस खड़ा होकर बोलता है कि तुम प्रभु परमेश्वर के एकमात्र इकलौते पुत्र हो। And I want you to focus on what Jesus responds to him. और यीशु मसीह ने उसे क्या प्रत्युत्तर दिया, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा आपका ध्यान लेकर आना He चाहता हूँ। says, blessed are you, Simon Bar-Jonah. और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि शिमोन तू धन्य है, But flesh and blood has not revealed this to you, क्योंकि but my Father who is in heaven. क्योंकि मांस और लहू ने तुझे ये नहीं बताया, परंतु स्वर्ग का जो परमेश्वर है उसी ने तुझे ये प्रकाशन And दिया। verse 18 says like this. और वहां पे 18वें आयत में इस प्रकार And लिखा I है, tell you, Peter, और मैं पतरस में तुझसे कहता हूँ upon this rock कि मैं इस पत्थर पर I will build my church. मैं अपनी कलीसिया को I बनाऊंगा। want you to know that the main perspective why Jesus came is to make disciples of Lord. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य इस संसार में अपने चेले बनाना And था। that discipleship could only be fulfilled through the model of the church. और शिष्यत्व का पूरा होना एक कलीसिया के द्वारा ही संभव है। But I want you to notice one thing in this passage. और मैं आपका ध्यान इस भाग में एक चीज के ऊपर लाना चाहता हूं। He says, Simon Bar-Jonah, flesh and blood has not revealed this to you. और वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस मांस और लहू के द्वारा तुझे ये मालूम नहीं हुआ But है। then he says, he calls him Peter, on this rock I will build my church. और फिर वो उसका नाम लेकर उससे कहता है, पतरस, मैं इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। I want you to know that Simon means weak as sand. मैं आपको बताना चाहता हूँ शमौन का अर्थ है कमजोर और दुखी, And Peter means strong as a rock. परंतु पतरस नाम का अर्थ है चट्टान, जो चट्टान के नहीं The मजबूत हो। point that I'm trying to make is this. मैं आपको एक जो यहाँ पे जो संदेश में देना चाह रहा हूँ वो When ये you है, come into church, जब आप कलीसिया में आते हैं, you need to have a revelation who Jesus Christ is in your life. आपको प्रभु यीशु मसीह कौन है करके मालूम होना चाहिए, उसका When you have प्रकाशन that होना चाहिए। revelation of who Jesus Christ is, जब आपके पास प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक प्रकाशन होगा, you will move from weak as sand to strong as a rock. आप एक कमजोर मारे पीटे व्यक्ति से आप जयवंत और उस चट्टान के समान मजबूत व्यक्ति बन I want you जाएंगे। to know the first and foremost thing that should happen in the life of a believer when he enters into church and is part of a church, that his life should be transformed by the revelation of Jesus Christ. एक व्यक्ति जब इस कलीसिया के भीतर प्रवेश करता है, एक कलीसिया के भीतर प्रवेश करता है, तो उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा एक नया बदलाव आना चाहिए।
if there is no transformation in your life, there is no point of you being part of a church. यदि आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, कोई रूपांतरण नहीं है, तो कलीसिया का भाग होने से कोई तात्पर्य नहीं। How many people do you know? How many people do I know? Been coming to church for years and years and years and years, no transformation in their life. कलीसियाओं में इतने सारे लोग हैं, आप जानते होंगे, मैं जानता हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सालों से साल भर साल कलीसिया आते जाते हैं, पर उनके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं है। When Simon had the revelation of who Jesus is, he said, "Now I'm going to build my church on this rock." जब शमौन के पास प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक प्रकाशन मिला, तब यीशु मसीह कहता है, अब मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया The को whole बनाऊं। point of coming to church is to be transformed, is to be renewed daily by the power of the Holy Spirit that is living inside of us through Jesus Christ. कलीसिया में आने का तात्पर्य यही है कि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे मानुषिक रूप को जो बदलते बदलते हम मसीह के समान, उसके समान बनते चले जाएं। Zacchaeus was a miser man and he used to take things from people. ज़क्कई एक ऐसे व्यक्ति था जो लोगों से छीनता था, कोसता था। But when he came into Jesus, पर जब वो प्रभु यीशु मसीह में आया, he became a giver. वो एक देने वाला बन गया। A person who was an adulterous woman, the adulterous woman जो पापिनी स्त्री थी, became the worship leader. वो वहां के आराधक बन गई। Oh, Matthew, the guy who was helping the taxes, became a disciple of मत्ती जो Jesus. चुंगी लेने वाला था, वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गया। A fisherman became fishers of men. जो मछली पकड़ने वाले साधारण मछुआरे थे, वो भी बदल That's गए। what happens when you have an encounter with Jesus जब Christ. आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मुठभेड़ होता है, तो यही होता है, आपका और मेरा जीवन रूपांतरित हो जाता Ask है। yourself this question. आज आप अपने आप से ये सवाल पूछें, What has changed in your life ever since you came to Jesus जब Christ? से आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, तब से आपके और मेरे जीवन में क्या बदला? What has changed in your character since you've known Jesus? आपके और मेरे चरित्र में यीशु मसीह को पहचानने के बाद क्या What has बदला? changed in your actions since you know Jesus? हमारे कर्मों में, हमारे हाथ के कार्यों में क्या क्या बदला है? If nothing has changed in your life, यदि कुछ नहीं बदला है, I want you to know that your point of coming to church is pointless. मैं आपको बताना चाहता हूं, तो फिर आपका कलीसिया में आना व्यर्थ है। You know what church is? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया क्या है। One time, this old couple went from Bihar. एक बार बिहार से एक बुजुर्ग दंपति कलीसिया में आए। They went to meet their son in a multinational company in Gurgaon. माफी चाहता हूं, वो एक बुजुर्ग दंपति अपने बेटा से जो MNC में काम करते हैं, उनसे मिलने गए गुड़गांव में। And then what happened? This is the first time they are going from the village to a big city. वो पहली बार ऐसा है कि वो गांव से एक बड़े शहर में जा रहे हैं। They've never been on a train, on a bus. They just had a cycle in their house. They've never seen a modern city. उन्होंने कभी बस में नहीं बैठे हैं, ट्रेन में नहीं बैठे हैं, पर वो पहली बार वो एक ऐसे बड़े चकाचौंध से भरे शहर को देखने जा रहे हैं। They reached the entry of the building. और वो उस बिल्डिंग के द्वार पर पहुंचे, And that building had an elevator. और उस बिल्डिंग के अंदर एक लिफ्ट था, एक एलिवेटर था, And then they're looking at the lift. और वो लिफ्ट को देख रहे हैं। So what happened was this not so good looking woman went into the lift and the lift was shutting when they reached. और जब ये जो औरत है, एक औरत उसके अंदर प्रवेश करती है, और जो लिफ्ट है, दरवाजा बंद होता है उसका, And they're waiting at the lift. और वो देख रहे थे, लिफ्ट को देख रहे थे, And the lift went up. और लिफ्ट ऊपर चला गया, And then the lift came down again. फिर वापस से वो डब्बा नीचे आ गया। But this time when the lift opened, पर अब की बार जब लिफ्ट खुला, this beautiful girl is standing there. इसके अंदर एक दूसरी लड़की गई थी, पर आए तो कोई दूसरी लड़की, And the people are wondering what just happened. और ये लोग खड़े होकर देख रहे हैं, भाई ये तो जादू हो गया। अंदर अगली लड़की गई, बाहर सुंदर लड़की आ रही है. What is happening? एक भद्दी से दिखने वाली एक लड़की गई थी, और इतनी सुंदर लड़की वापस आ गई। तो पति बोलता है अपने पत्नी से, तो अंकल जी बोलते हैं उनसे, बीवी से बोलते हैं, ए घुस जा अंदर. जब दूसरी बार खुलेगा, 30 साल पुराना अवतार वापस आ जाएगा. हंसी आ रही है. That is what church is supposed to be in our lives. Hallelujah. कलीसिया भी ऐसा होना चाहिए। When you come in one way.
आप जब आप प्रवेश करते हैं एक रूप लेकर आते हैं, but then you are never the same once you come back out. परंतु जब आप बाहर Hallelujah. जाते हैं तो रूपांतरित हो जाते You हैं। come in as a sinner, आप एक रूप लेकर एक पापी के तौर पर but आते you हैं, come out as a new transformed being. परंतु आप बाहर एक धर्मी के तौर पर जाते Or हैं। you go in as a beggar, आप एक भीखमंगे के तौर पर अंदर but you जाते come हैं, out as a victorious person in परंतु आप Christ. जयवंत से भी बढ़कर बाहर आते हैं, Because Jesus changes your life. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जिंदगी को बदलता है। Jesus transforms your life. यीशु मसीह हमारे जीवनों को बदलता है। How many of you want that transformation power of the Holy Ghost in your life? आप में से कितने लोगों को पवित्र आत्मा की वो सामर्थ जो रूपांतरित करती है चाहिए? This is not a social club. ये कोई सोशल क्लब नहीं This है। is not a Jamasiki club. This is not a Jamasiki club. ये कोई जय मसीह की क्लब नहीं This है। is not a hallelujah room. ये कोई हालेलुया के कमरा नहीं This है। is not a praise the Lord place to hang out. ये कोई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने वाला जगह नहीं है। This is the place where Jesus Christ is a king and savior of our church. पर ये वो जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे कलीसिया का, हमारे जीवन का राजा और उद्धारक है। You need transformation in your life. क्या आपको अपने जीवन में रूपांतरण चाहिए? You're going to look different. आप दिखेंगे अलग, फिर You're going to talk different. आप अलग बात करेंगे। You know, I see so many people in our church. हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं। You know, when they came in 5, 10, 8 years ago, आज से 8-10 साल पहले जब आए थे they used to look different. वो पहले अलग दिखते थे, But now they're all yo-yo and wearing all cool clothes and cool shoes, and it makes me happy. अब पहले जब वो आए थे तो बहुत यो दिखते थे, टनाटन दिखते थे। But let the transformation not just be from the outside, but let it be internal transformation, which will get you closer to Jesus Christ. परंतु आपके अंदर से एक रूपांतरण होना चाहिए जो आपको प्रभु यीशु मसीह के करीब लेकर आए। Hallelujah. हालेलुया। When somebody comes to church, this should be a place of transformation. जब कोई कलीसिया में आए तो ये जगह उनका रूपांतरण का स्थान होना चाहिए। The second point I want to make about a church. दूसरी बात जो मैं कलीसिया के विषय में कहूंगा, When you look at Genesis chapter 2 verse 18, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसके 18वीं आयत में जब हम देखते हैं, it says like this. वो इस प्रकार And कहता the है, Lord said, और प्रभु परमेश्वर ने कहा, this is about Adam and Eve. आदम और हव्वा के विषय में It is कहता है, not good for a man to be alone. एक पुरुष का अकेला होना अच्छा नहीं, I will make him a help meet for him. मैं उसके लिए एक उत्तम सहायक बनाऊंगा। A help meet. एक उत्तम सहायक। You know, you need to understand, it is not a misprint given there. आपको एक बात समझना है कि यहाँ पे कोई गलती से कुछ छप नहीं गया It's है। written in the Bible, I will give you a help meet. अब मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, The meaning of meet is a helper. और एक सहायक का इसका अर्थ सहायक है। A church is supposed to be a place where we help people. और कलीसिया ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर हम लोगों की मदद करते हो। The church needs to be a place where we are there to not just fellowship and say praise the Lord, but actually be there to help people. कलीसिया में सिर्फ आकर लोगों को मुस्कुरा के जय मसीह की बोलकर चले जाने के लिए नहीं, पर आप उनकी सही में मदद करें। And another meaning of this word meet, और ये मिलने का अर्थ क्या है? मीट का अर्थ क्या है? मिलने का नहीं, helper का मतलब, help meet का मतलब है it makes you a better version of yourself. इसका अर्थ है कि आपसे उत्तम एक सहायता करने वाला। Amen. आमीन। That's what the church is supposed to be. कलीसिया एक ऐसा स्थान होना चाहिए। You know, many times that we see that in churches the pastors and churches are so engrossed in growing the church and getting more numbers and so on and so forth. There is no help that is happening. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पासवान लोग कलीसिया को बढ़ाने में, वहां पे विश्वासियों को भरने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वहां पे लोगों को मदद ही नहीं पहुंच पाती। And I want to let you know that we at Capital Christian Center, I wanted to say this sermon when we just came to a church home, because this is not the church. This is the church. मैं आपको बताना चाहता हूं, कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर में जब हम यहाँ पे प्रवेश करते हैं, कलीसिया ये नहीं है, कलीसिया ये है। And I want to let you know that our church believes in being a helping hand to any and everybody who needs help. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया एक ऐसा कलीसिया है जिसकी मदद चाहिए, जिस किसी को मदद चाहिए, उसको एक मदद का हाथ बटाने के लिए हम आगे हैं। I know we are not perfect, हम जानते हैं कि हम बिल्कुल उत्तम नहीं हैं, but it is the desire of our heart. परंतु हमारी हृदय की इच्छा ये है। Whatever you need, आपको क्या चाहिए? we promise you
we will stand with you. पर हम आपको वायदा देते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे. We promise you, we will never let you be alone. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपको कभी अकेले नहीं जाने देंगे. Why? क्यों? Because that is the role of the church. क्योंकि कलीसिया का यही रोल है. I want to let you know, we're happy for all the online viewers who are watching us online. जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपसे मिलकर बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है. And we have over 320 people in our church. हमारे यहाँ पे कलीसिया में 320 लोग हैं. Last week we had 180 people. पिछले सप्ताह हमारे कलीसिया में 180 लोग थे. This week we have 243 people. इस बार 243 लोग यहाँ पर हैं. Why? क्यों? Because they don't understand what church is all about. क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं कि कलीसिया क्या चीज है. Amen. आमीन. Church is where your life is transformed. कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर आपका जीवन रूपांतरित होता है. A church is a place where you can find help. कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर आप मदद प्राप्त कर सकते I हैं. want to tell you very clearly, we are not a Malayali church. मैं आपको बड़े साफ रीति से शब्दों में बताता हूं, ये मलयाली क्लब नहीं है, मलयाली चर्च नहीं है. We are a kingdom church. हम एक स्वर्ग राज्य की कलीसिया It है. doesn't matter whether you're Malayali, you're Talayali, you're Telugu, you're from Jharkhand, you're from Bihar, you're from Nepal. It doesn't matter. If you are here, we will stand with you. आप चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, नेपाल से हो, केरला से हो, तेलंगाना से हो, भारत के किसी भी स्थान से या विश्व के किसी भी स्थान से क्यों ना हो, पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे. Because our goal is to change your life and to be there whenever, wherever you need us to be. हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपकी जिंदगी को बदले और आपके साथ जहां कहीं जैसे खड़े हो पाए हम आपके साथ रहें. So I want to encourage you, church. मैं आपको कलीसिया में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं. Stop coming to church. कलीसिया में आना सिर्फ इसलिए बंद कर दीजिए. Stop coming and sitting on the same chair सिर्फ एक ही कलीसिया में एक ही कुर्सी पे आके आकर रोज बैठना बंद कर and दीजिए telling your friend, और अपने दोस्त को कहना आके मेरे पास बैठ जा, इधर आ जा यार, इधर आ जा. and not helping a single person in the church. और फिर कलीसिया में किसी एक की भी आप मदद ना करो. No, 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 no. Nobody wants your money. नहीं चलेगा गुरु, किसी को आपके धन की जरूरत नहीं है. They want a hug. वो आपकी एक मुस्कुराहट की, आपके एक गले लगने की, एक आलिंगन की वो मदद चाहते हैं. They want a word of encouragement. उनको एक शब्द प्रोत्साहन का चाहिए. Stop making everything about Pine, engane onda sugamano. अरे कैसे हो, सब बढ़िया? From now onwards, you better open your mouth and talk in a language you don't know how to talk in. Like my mom talks in Malayalam. Aap to jani hu, meko aani. Her Hindi must not be that great, but we are called to reach everybody. आप मुंह खोलकर शायद दूसरों के सामने अन्य भाषा में बात कर सकते हो, दूसरों से आप मिले बिना निकल सकते हो, परंतु कलीसिया में आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप सबसे मिले. So stop looking for somebody familiar in the room. हाँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है क्या, उससे ही मैं बात करूंगा, ऐसा करना बंद कर दीजिए. Stop looking for a Tamilian in the church. आप ढूंढना बंद कर दीजिए. अरे कोई तमिलनाडु से है क्या, तमिल मक्कल है क्या यहाँ पे, उनसे ही मैं बात करूंगा. Stop looking for a Baunara person in the church. कोई यो सिर्फ अपने बराबर को कोई है, उससे ही मिलूंगा मैं, ऐसा करना बंद कर दीजिए. Stop looking for any national or regional person. If you see, open your eyes this morning, church, and look around you. And if you see somebody's crying in worship, maybe he's going through something in his life, and you better go and say, bro, what do you need? I want to pray for you. I want to stand with you, because it's not the responsibility of the pastor, but the responsibility of every believer to be a help meet to the world that we live in. अपने जैसे अपनी भाषा, अपनी जुबान बोलने वाले लोगों को ढूंढने के बजाय अपनी नजर उठाकर देखो कि आपके आसपास बैठा कोई भाई या बहन यदि आंसू बहा रहा है, उसके पास जाकर आप उससे कहे कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि स्वर्ग इसी से प्रसन्न होता है. कलीसिया की बुलाहट यही Church is है. a place of transformation. कलीसिया एक रूपांतरण का स्थान है. Church is a place of help and making a better version of you. कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको मदद मिलती है और आपका उत्तम व्यक्तित्व बाहर आता है. And finally, church is a magnet. परंतु आखिरी में कलीसिया एक चुंबक है. I'm going to explain this to you. मैं आपको सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं. In 2 Kings chapter 6, दूसरे राजा उसके 6 अध्याय में it's a story of a bunch of people who were trying to expand. और ये Their church. ऐसे कुछ लोगों की कलीसिया है, जो ऐसे कुछ लोगों की कहानी है जो अपनी कलीसिया को अपने लोगों को थोड़ा बढ़ाना चाहते थे. And I'm just going to read that portion out for you. मैं वो भाग आपके लिए पढ़ूंगा.
We read there in 2 Kings chapter 6. दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय। It's a story where a person loses his axe head. एक ऐसा व्यक्ति वहां पर उस लिखा गया है जिसने अपने कुल्हाड़ी का सर खो दिया। And it says, I'm going to read from verse 2. Please let us go to the Jordan where we can get a log and build ourselves a place to live here. He says, go, he said. Then one of them said, please come with your servants. And he said, I will come, he answered. Verse 4 onwards, and this is what I want you to focus on. So he went with them, and when they came to the Jordan, they were cutting down trees. And this is what I want to focus on. As one of them was cutting down a tree, the axe head fell into the water, and he cried out and he said, oh my master, it was borrowed. And the man of God asked, where did it fall? Then he showed him a place, and the man of God cut a piece of wood and put it there, and it made the iron float. वो आयत में वो भाग में आपके लिए जल्दी से पढ़ूंगा। वहां पे इस प्रकार लिखा है, एक दिन नबियों, आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? There was a person, and the axe head, it went into the water, and then the prophet said, tell me where it fell down, and he cut a branch, and he put the branch on the water, and the axe head flew back up. What I want to say today is this. नबियों के दल में से एक व्यक्ति वो पेड़ काट रहा था, पेड़ काटते बीच उसके कुल्हाड़ी के फाल से बेट से फाल निकलकर पानी में गिर गया, और एलीशा उससे पूछता है कि तेरी फाल कहाँ गिरी, तेरा कुल्हाड़ी कहाँ गिरा? Many people are living in this world, बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं whose life has sunk down in the pit of rejection and guilt. जिनकी जिंदगी डूब गई है इस संसार के पानी में। It's gone down and down and down because of their life and circumstances and sin and things that they've gone through. जिंदगी की परिस्थितियों, तिरस्कार, वेदनाओं की वजह से उनका जिंदगी डूबता डूबता चला गया है। But what do we see in this story? परंतु इस कहानी में हम क्या देखते हैं? We see that the sins of your life are so heavy and they cannot be recovered by anybody else. कि हमारी जिंदगी के पाप इतने भारी हैं कि यदि वो डूब जाए तो कोई और उसे निकाल नहीं सकता, हमें निकाल नहीं सकता वहां से। But I want to let you know, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, the day the cross of Calvary comes on top of your life, कि जिस दिन वो कलवरी का क्रूस आपके और मेरे ऊपर आ जाए, your sins will mean absolutely nothing, and you will start swimming from the water, and you're going to reach the surface, and you're going to get connected to the magnet of love and grace, and his name is Jesus Christ. उस दिन आपका और मेरा पाप का बोझ शून्य हो जाएगा, और आप उस जिंदगी के उस डूबे हुए अवस्था से उसके ऊपर तैरने लगेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप का बोझ उस क्रूस पर उठा लिया। I want you to know that that's what the church is supposed to be. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया एक चुंबक के नाई होना You know, चाहिए। you come in with your burdens. आप अपने बोझ के साथ यहाँ पर आते हैं। You come in with the sins that you have committed into this church. आपने इस कलीसिया में जो पाप किए उस पाप के बोझ के साथ आते हैं। And then many people may probably judge you and see that, oh, we know what you did. अरे बहुत सारे लोग फिर आपको देखेंगे, अरे हम जानते हैं तूने क्या किया, तूने ये किया था, वो किया था। But when you come into the presence of the Lord, परंतु जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते the हैं, cross of Jesus Christ, परंतु यीशु मसीह का वो क्रूस it comes upon your life. जब वो आपकी और मेरे ऊपर आता है, And your sins, he says, give me your sins and I will take your burden. यीशु कहता है कि तुम्हारे पाप मुझे दे दो, उसका बोझ मैं उठाऊंगा। And slowly, a life that was going to die and was living in guilt and was headed towards suicide slowly begins to float and starts to come up and up and up. और वो जिंदगी जो खुदकुशी की और निराशा की और जंजीरों की ओर जो बढ़ रहा था, धीरे धीरे अब वो पानी के ऊपर जिंदगी में बढ़ने लगता है। That's what Jesus Christ can do. यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी में ठीक यही करता है। That's what the church should do. कलीसिया को यही करना चाहिए। That's what Christ is all about. और यही है जो मसीह आपके लिए और मेरे लिए करता है। The cross makes an axe head swim. क्रूस उस कटे हुए कुल्हाड़ी को पानी में तैरने लगता है। But it all begins when we say, where did you lose it? परंतु इन सब की शुरुआत एक सवाल से होती है। एलीशा उस व्यक्ति से पूछता है कि तूने अपनी कुल्हाड़ी के फाल को कहां खोया? When you come to the presence of God, church, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं प्रिय लोगों, come
the way you are. जैसे आप हैं ठीक वैसे ही उसकी उपस्थिति में आए. Come broken, टूटे हुए पिसे हुए मन के साथ उसकी उपस्थिति में आए. because his cross will bring you up and connect you to him. क्योंकि उसका क्रूस आपको आपके जिंदगी में उस उथले पानी में से निकालकर, उस गहरे पानी में से निकालकर अपने महिमा के साथ वो जोड़ देगा. That's what Jesus can do in your life. कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ये आपके जिंदगी में कर सकता है. What is our role as a church? कलीसिया होने के नाते हमारा कार्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है? It's our responsibility to show that love and grace to the world. संसार को उस क्रूस का दया, उस क्रूस का प्रेम दिखाना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है. We are supposed to be that magnet. हमें वो चुंबक बनने की आवश्यकता है. We are supposed to be those people who are going to attract the people who are in sin, and they're going to see how much we love them, and they're going to be attracted to us, and we're going to bring them to Jesus Christ. और जब पाप में पड़े हुए लोग ये देखते हैं, आपको और मुझे देखते हैं, अरे वो मसीह के प्रेम को जानने पाए, जब वो पहचानते हैं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, वो आपके द्वारा मसीह की ओर खींचे चले आए. I want you to know मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जानें, that axe head never thought it would float again. जो डूबी हुई जो कुल्हाड़ी है उसने कभी नहीं सोचा कि वो पानी पर कभी तैरेगा. Because it was going against Newton's first law. क्योंकि वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के खिलाफ है. How can it come up? पानी पर लोहा कैसे तैर सकता है? How can we forgive that sin? अरे वो पाप वो जो मैंने किया वो माफ कैसे हो सकता है? How can that person ever come to Jesus Christ? अरे ये व्यक्ति कैसे मसीह में आ सकता है? But the minute you tell Jesus, that's where I lost it. परंतु उस क्षण जब आप मसीह से कहते हैं, देख प्रभु मैंने यहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी खोई, यहाँ पर मुझसे गलती हो This is गई, where I made a mistake. यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, This is where I faltered and fell down. यहाँ पर मैं ठोकर खाकर गिर गया. The cross will go over that area of your life. और उसी जिंदगी के उसी अमुक स्थान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आता है. And slowly it will defy gravity, it will defy law, it will defy logic, and you will have a brand new life. और वहां पर बुद्धि के परे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ परमेश्वर काम करता है और आप उस पानी से उस गिरा हुआ कुल्हाड़ी जो डूबा हुआ है वो पानी पर तैरने लगता What है. is my responsibility? अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? I am going to be a Christ magnet. मैं मसीह जो चुंबक है उसका चुंबक बनने वाला हूं. I'm going to be a magnet of the love of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का एक चुंबक बनने वाला I'm हूं. going to be a magnet of the grace of God that is flowing through my life. अब मैं प्रभु यीशु मसीह के उस दया के उसके अनुग्रह का एक चुंबक बनने वाला हूं. मेरे जिंदगी से उसका अनुग्रह बहेगा. Because greater is He that is in me than he that is in the world. क्योंकि जो मुझ में है वो इस संसार में होने वाले से बढ़कर है. Hallelujah. आमीन. Hallelujah. आमीन. हालेलुया. That's what this church is about. कलीसिया यही है. This is church. कलीसिया यही है. We are love. हम प्रेम हैं. We are grace. हम अनुग्रह हैं. We are forgiveness. हम माफी We are हैं. encouragement. हम प्रोत्साहन हैं. We are perseverance. हम धीरज हैं. We are love. हम प्रेम हैं. We are the church of the Lord Jesus हम Christ. प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. I want you to sink that into your hearts this morning. मैं चाहता हूं कि ये चीज आपके हृदय के अंदर बैठ जाए. Nobody cares if you come to church. कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोगों की आप कलीसिया If में you're going आते to हैं come या to नहीं. church because you want to show your attendance. आप यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए आते हैं. If there is no transformation in your church, in your life. यदि आपके जिंदगी में कोई रूपांतरण नहीं है तो, If you don't want to help anybody except yourself. यदि आप अपने आप के अलावा किसी और की मदद करना ही नहीं चाहते, And you don't want to be a magnet of sinners like Jesus wants to be. I want to let you know that you're in the wrong place. मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप पापियों को आकर्षित करने वाले मसीह के चुंबक नहीं बनना चाहते तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप गलत जगह पर हैं. Doesn't matter if your father is a pastor. ये मायने नहीं रखता कि आपके पिताजी एक पास्टर है या नहीं. Doesn't matter if you are a pastor. ये भी मायने नहीं रखता कि आप एक पास्टर है या नहीं. But what matters is what Jesus says. Who do you say I am? परंतु
जो मायने रखती है वो ये है कि आप कौन कहते हैं कि मसीह कौन है। I don't want to be known, we don't want to be known in the city as, oh, they have a big building वाला church है. अब हम नहीं चाहते कि कलीसिया इस शहर में लोग कहें अरे ये तो वो लोग हैं जो बड़े ऑडिटोरियम में आराधना करते हैं। Hey, they are the big people that has very good worship, very good music, झकास music. अरे ये वही लोग हैं जिनके चर्च में रोज मस्त म्यूजिक बजता है। We want every person that enters into that door to be transformed by the power of Jesus Christ. परंतु हम ये चाहते हैं कि हमारे कलीसिया के भीतर जो इस दरवाजे के अंदर पैर रखे वो मसीह के प्रेम से रूपांतरित हो We जाए। want to be a helper to every person that walks into this church. जो कोई भी इस कलीसिया के अंदर आए हम उसको मसीह की मदद हम देना चाहते हैं। And we want to extend the same love and grace and show the magnet of Christ's values to every sinner that comes into our church. हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो पापी, हर एक वो तिरस्कृत व्यक्ति जो इसके अंदर आए उसको हम मसीह का वही प्रेम, अनुग्रह, धीरज, शांति हम उसको देना चाहते हैं। Church, this is who we are. This is who we are. कलीसिया हम यही है। Do you want to be part of this church? क्या आप इस कलीसिया के भाग बनना चाहते हैं? That's the church I want to be a part of. एक ऐसी कलीसिया का भाग तो मैं बनना चाहता हूँ। That is what church is all about. कलीसिया यही है। That's what our Jesus is all about. यही प्रभु यीशु मसीह है। Transforming center. एक जगह जहां पर आप और मैं रूपांतरित हो जाएं। A place where we help everybody. एक ऐसा स्थान जहां पर हम सबको मदद करें। And finally, where we extend love and grace to everybody. एक ऐसा स्थान जहां हम हर किसी को प्रेम और मसीह का अनुग्रह हम बांटें। Jesus says, you will be known by your love. प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम तुम्हारे प्रेम से जाने जाओगे, तुम्हारे फलों से पहचाने जाओगे। I want to be known by my love. मैं अपने प्रेम के द्वारा पहचाना जानना I चाहता हूँ। want you all to stand up and this is the challenge I want to give to each one of you. और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। यही वो समय है जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। Tell Jesus, I want to be a person who is transformed by God. आप प्रभु यीशु मसीह से कहे परमेश्वर मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो तेरे प्रेम से रूपांतरित हो जाऊं। I want to be a person who helps anybody. परमेश्वर मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो हर किसी की मदद करे। You may see somebody standing outside on the road. शायद हो सकता है आप सड़क पर किसी व्यक्ति को खड़े देखें। Don't pass that person standing on the road waiting for an auto rickshaw while you are going alone in your car. जब आप कार में अकेले जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को छोड़कर मत चले जाओ, उसको नजरअंदाज मत करो क्योंकि वो एक ऑटो के लिए इंतजार कर रहा है। We are the church. हम एक कलीसिया है। We will never leave anybody alone. हम कभी भी किसी को अकेले नहीं छोड़ेंगे। We will never leave any of our family members alone. हम हमारे परिवार में से किसी को भी हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। Hallelujah. Hallelujah. We will show compassion to everybody. हम एक दूसरे के प्रति दया दिखाएंगे। We will show love to everybody. हम हर एक के प्रति प्रेम दिखाएंगे। We will show grace to everybody. हर एक को हम अनुग्रह दिखाएंगे। I want to let you know if there's anybody in this church who feels that you are falling down and down and down because of the sin, today I want to let you know the grace of God is more than enough for you to pick you up from the miry clay and put you on the rock called Jesus Christ. Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप में से बैठा हुआ कोई भी ऐसा किसी को लगता है कि मेरी जिंदगी डूबते 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 अब कोई आशा नहीं है, मैं डूबता चला जा रहा हूँ, परंतु आज मैं आपको एक आशा की ओर दिखाना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है उसकी ओर अपने नजरों को उठाएं। His grace does not make sense. His love does not make sense. उसका अनुग्रह, उसका प्रेम आपकी समझ से परे है, but he is there for you. पर वो आपके लिए है। This is not a church. ये सिर्फ और सिर्फ एक कलीसिया नहीं है, This is a family. ये एक परिवार है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is not a twice a month coming place. ये ऐसा जगह नहीं है जहां पर आपको सिर्फ महीने में 2 बार आना है। This is your family. ये आपका परिवार है। I still know I was in a place called Dang in Gujarat. मुझे अभी भी याद है डांग नाम की जगह पे मैं था गुजरात में। And we built a brand new church for this place. और उस जगह के लिए हमने एक अच्छी एक सुंदर नई कलीसिया बनाई डांग में। If they picked me up from here, for example, एक व्यक्ति ने मुझे अपने कंधों पर उठाया इस जगह पर। कंधों पे नहीं, if
They picked me up. My car dropped here. मेरे कार ने मुझे यहाँ छोड़ा है तो मुझे यहाँ से The उठाया church is almost till the gate of our school. और जो हमारा स्कूल का जो गेट है जहाँ से आप अंदर आए हैं वहाँ पे इतना दूर है चर्च. You know what that person did? पता है आपको उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया? He was almost 50 years old. वो 50 साल का व्यक्ति था. He picked me up on his shoulders and walked for 1 kilometer because he was so happy that we built his church. उस व्यक्ति ने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया और कंधों पर रखकर लगभग 1 किलोमीटर चला क्योंकि वो खुश था क्योंकि हमने उनके लिए कलीसिया बनाई. He picked me up on his shoulders, उस व्यक्ति ने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया. walked for almost 1 kilometer. 1 किलोमीटर वो पैदल चला. फिर Can you believe that? क्या आप इसे विश्वास कर सकते हो? You can't pick up your Bible from here till the gate. अरे आप अपनी बाइबल लेके यहाँ से घर से बाहर नहीं आ सकते. He गुरु. picked me up. I'm like 75 kilos and he's like a short man. और वो एक छोटे से नाटे व्यक्ति उन्होंने मुझे 75 किलो के मुझे उठा लिया. For 1 kilometer. 1 किलोमीटर तक वो चले. Why? क्यों? Because he was glad when they said to him, let us go to the house of the Lord. Hallelujah. जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो हम परमेश्वर के भवन को चले तो मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन प्रसन्न हुआ. How are we regarding church? कलीसिया के बारे में जब हम कहते हैं तो हमारा मन कैसा होता है? Many of us feel that we need an award for coming on time to church. हाँ, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आगे बुलाकर तोहफा शाबाशी देना, रहे आप टाइम पे आ गए गुरु धन्यवाद. We come in our car and we come to our church, we feel that it's a big, हमको award मिलना चाहिए. हाँ. But I tell you, in that same church, people used to walk for 16 kilometers with chappals on just to come to church. मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे कलीसिया है जहाँ पे 16 किलोमीटर तक लोग पैदल चलते हैं सिर्फ चप्पलों में ताकि वो कलीसिया में समय पर आराधना कर पाए. God has given us everything, church. परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है. Amen. आमीन. But it's time for us to tell the world who we are. पर अब समय आ गया है कि हम संसार से कहे कि हम कौन हैं. Your boss better know not to call you on Sunday morning. आपकी बुलाहट ये नहीं है कि आपको हर संडे आपका बॉस को जानना चाहिए कि गलती से संडे मॉर्निंग को बुलाया तो सीधा रिजेक्ट मारेंगे. क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं. हालेलुया. आपके बच्चों को पता होना चाहिए मंडे से लेके सैटरडे तक पापा सुन लेंगे मगर संडे सुबह पापा हिटलर बनने वाले हैं. क्यों? क्योंकि बेटा तेरे को तो चर्च में लेके जा, तेरे को नींद आ रही है, तेरे को सर में दर्द है, तेरे को पैर में दर्द है, तेरे को कुछ भी हो तू चर्च में जाएगा. क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह का घर है. हालेलुया. Parents, let's model what it means to be a true follower and disciple of Jesus Christ. माता पिताओं हम अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बने और उन्हें सिखाए कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके चेले कैसे बनते हैं. हालेलुया. 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 ये परमेश्वर का कलीसिया है. This is the church of God. And the gates of hell shall not prevail against it. और नरक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी. Father, we commit everything into your mighty hands. पिता हमें से हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं. Father, if you want to recommit your life, you need to tell Jesus, God, I was a bit lazy about church. यदि आपको किसी को परमेश्वर से कहना है उससे कहना है परमेश्वर मैं कलीसिया के प्रति थोड़ा आलसी था. I was thinking अगर time मिल गया तो I will go. If I don't get time, I will not go. परमेश्वर मैं सही टाइम को देखकर जाने की कोशिश कर रहा था, टाइम से लेट हो रहा था, पर अब से ऐसे नहीं होऊंगा. But not anymore. पर अब ऐसा नहीं. That's not the church that we are a part of. परंतु ऐसी कलीसिया के हम भाग नहीं हैं. We are part of the transformational church of Jesus Christ, which is Capital Christian Center. हम उस कलीसिया के भाग है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रूपांतरण होते हैं. Tell Jesus, Jesus changed my life. आप प्रभु यीशु मसीह से कहे प्रभु यीशु मसीह आप मेरी जिंदगी को बदलिए. I don't want to go back the same way I came. जैसे मैं आया था उस दरवाजे से वैसे ही उस दरवाजे से बाहर नहीं जाना चाहता. Tell Jesus, God, the way I came in today, I don't want to go back that way. मैं जैसे आया वैसे ही वापस नहीं जाना चाहता. Second, tell God, God, enable me to help somebody. परमेश्वर मुझे मदद कर ताकि मैं किसी और की मदद करूं. Lord, help me to show the love and grace of Jesus Christ this day. आज ही के दिन तेरा प्रेम और आपके उस अनुग्रह को किसी और को बताने के लिए महसूस कराने के लिए मुझे मदद कर. People will know Jesus Christ through your life. और प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा
आपके जीवनों के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने How are पाएं। we going to reach 500 people by December 31st? दिसंबर 31 से पहले हम 500 लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? When the world knows who we are, Capital Christian जब Center. ये संसार Hallelujah. जानेगी कि कैपिटल क्रिश्चियन ये सेंटर कौन है। कलीसिया कैसे बढ़ेगा? जब मैं और सुमैया दुनिया को दिखाएंगे कि कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर यीशु मसीह का एक झंडा लहराने वाला एक कलीसिया है। हालेलुया। आमीन। It's all our responsibility. ये सब हमारी जिम्मेदारी है। How many of you want to take the responsibility of God's work? आप में से कितने लोग परमेश्वर के कार्य का जिम्मेदारी लेना चाहते How हैं? many of you want to take the responsibility of God's work? आप में से कितने लोग परमेश्वर के उस कार्य की जिम्मेदारी लेना How चाहते many of हैं? you are willing to commit your life to Jesus? आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना How चाहते many of you हैं? are willing to commit your time for आप में Jesus? से कितने लोग अपने समय को प्रभु यीशु मसीह How को many of you देना are willing to चाहते हैं? commit your intelligence for Jesus? आप में से कितने लोग अपनी बौद्धिक क्षमताओं को प्रभु यीशु मसीह के How लिए many of इस्तेमाल you are करना ready to चाहते bring हैं? your excitement into worship for आप में से Jesus? कितने लोग ऊर्जा के साथ आराधना करने के लिए तैयार हैं? Lord, we're going to change. परमेश्वर हम बदलने जा रहे हैं। Parmeshwar, you have given us everything and more. परमेश्वर जो हमें चाहिए था उससे बढ़कर आपने हमें दिया है। There are very few churches in this Delhi who have a hall like this. बहुत ही कम हाथ पे गिनने लायक कलीसिया हैं जिनके पास ऐसे जगह हैं। But you gave it to us. परंतु आपने हमें भी दिया, इसके लिए धन्यवाद। We did not deserve it. हमारी इसकी कोई योग्यता नहीं थी, We did not earn it. हमने इसको कमाया नहीं है, But you still gave it. परंतु इसके बावजूद भी आपने हमें दिया है। And we will be faithful. और हम परमेश्वर इसको लेकर विश्वास योग्य रहेंगे। How many of you want to be faithful to God? आप परमेश्वर के साथ कैसे विश्वास योग्य I रहेंगे? want to tell you right now, रंजीत के साथ विश्वास योग्य मत रहिए, मगर यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य रहिए। Hallelujah. Amen. Don't be committed to Ranjit or anybody else, but be committed to God and His words in your life. आप परमेश्वर के साथ उसी के साथ कटिबद्ध रहिए, किसी मनुष्य के साथ नहीं। Hallelujah. आमीन। God, you're going to change this city because of us. परमेश्वर हमारे द्वारा इस शहर को बदल देगा। Father, we love you. We thank you. परमेश्वर हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे अद्भुत कार्य के लिए. We are grateful for your life, for a life that you have given us, so that we can magnify you, so that we can lift up your name. We thank you for the money that you've given us, the resources that you've given us. But it's a time, परमेश्वर, आज एक और बार तू हमें याद दिला रहा है कि सच्ची कलीसिया क्या है. सच्ची कलीसिया वहाँ है जहाँ पे परमेश्वर पापियों को क्षमा मिलती है. सच्ची कलीसिया वो है जहाँ पे परमेश्वर ठुकराए हुए लोगों को एक घर मिलता है परमेश्वर. जहाँ पे परमेश्वर हटाए हुए लोगों को एक परिवार मिलता है परमेश्वर. जहाँ पे परमेश्वर ठुकराए हुए लोगों को एक झप्पी मिलने की एक जगह मिलती है. That is what church is, Lord, where the weak say that they are strong, when the poor say that they are rich. That is what we want to be, Father. And you pray, we enable each believer to walk humbly, walk with faithfulness, walk with the commitment to the Lord Jesus Christ. And we love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, Amen. amen. Why don't we give the Lord a huge shout and a clap offering to the Lord? Hallelujah! 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 We serve an amazing God. हम क्या ही मनोहर एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। Nothing is too much for our God. हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, असंभव Nothing we नहीं है। offer unto our God is too much. कुछ भी जो चीज हम परमेश्वर को देते हैं वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, Because He's worthy. क्योंकि वो उन सारी आदर महिमा के योग्य है। Amen. आमीन। May the love of the Father, the grace of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time and forevermore. And all God's people shouted.